Everyone, in today's classes, today we discuss about the chapter 3 and chapter 4 of class 8. Okay, today we discuss the all important MCQ regarding the synthetic fiber and plastic and metal and non-metals. ठीक है, these are very important chapters. Like metal and non-metals आपको class 10th में भी मिलेगा. Okay, and ये बेसिक है केमिस्ट्री का कि मेटल एंड मेटल आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट टेबल्स के एलिमेंट्स को भी समझ पाएंगे. ओके, तो मेटल एंड मेटल्स क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन सा हार्ड होता है, कौन सा सॉफ्ट होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जैसे सोडियम, पोटासियम, ब्रोमीन, मरकरी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग MCQ में सॉल्व करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. Now the first question is, which one is the properties of metal? Which one is wrong statement? Wrong statement. Okay, which one is wrong statement? Okay, the option number 1 is metals are hard. Okay, option number B is all metals are hard. All metals are hard. Okay, now option number C is both A and B, and last one is none of these. Okay, that is question number 1. Now we write question number 2. Question number 2 is sulfur dioxide सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा फॉर्मेशन करता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा एसिड बनता है, वो आपको लिखना है. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म. ऑप्शन नंबर 1 इज sulfurous acid. B is H2SO4, C is H2SO3, and D is all of these. Okay, that is question number 2. Now we write question number 3. Question number 3 is very interesting and very easy. Evaluate the wrong statement. Okay, you have to determine the wrong statement which are given below. First option is A. A is non-metals. Non-metals are bad conductor. Okay, option number B is non-metal are ductile. Non-metal are malleable. Okay, now D is option number B and C both. Okay, B and C both. Okay, now we revise from the question number 1 to 3. Now the question number 1 is which one is wrong statement. आपको क्या करना है कि चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज मेटल्स आर हार्ड. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज ऑल मेटल्स आर हार्ड. Option number C is both A and B statement are false, and D1 is none of this. Okay, that is question number 1. Now we move to question number 2. Sulfur dioxide. Sulfur dioxide react with water. Okay, and form option number 1 is sulfurous acid. Okay, sulfurous acid, and B is H2SO4. H2SO4. C is H2SO3. Okay, now last one is all of this. ऑल ऑफ दिस बोले तो इसमें कुछ भी फॉर्म नहीं होगा जो आपका ऑप्शंस में दिया है. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. इवेल्युएट द रॉन्ग स्टेटमेंट. आपको क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानना है.
out of 4. Option number 1 is non-metal are bad conductor. Option number A. B is non-metal are ductile. Now C is non-metal are malleable. And D is B and C both. Okay, तो you have to determine the one option आपको चुनना है जो इसमें से गलत है. Now we write question number 4. 4 is metal react with water. Metal react with water. React with water form. Option number 1 is metal hydroxide. Okay, metal hydroxide. Now, option number B is hydrogen gas. Option number C is both A and B. And now, the last option is only hydrogen gas. Now, it is already बी ऑप्शन में दिया गया है. नाउ ओनली नाइट्रोजन गैस. ओनली नाइट्रोजन गैस. देयर आर 4 ऑप्शंस. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज which can be beaten into thin sheet. ओके, मैंने आपको बताया था कि मैलिएबल का मतलब क्या होता है. बस वही आपके लिए हिंट काफ़ी है. इसमें बताना कि किसको हम लोग मैलिएबल में यूज़ कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज जिंक. ऑप्शन नंबर बी इज कार्बन. ऑप्शन नंबर सी इज मरकरी. एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्रोमीन. ओके, वेरी इजी. ऑप्शंस भी आपके बहुत इजी दिए गए हैं. आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज बेस्ड ऑन फिगर. आपके ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड में आपको एक ये दिख रहा होगा इमेज जो आपके एनसीईआरटी से लिया गया है. इस इमेज को देख के आपको बताना है कि इमेज क्या बताता है. आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि इमेज किस चीज़ का है. ओके, अगर आपको दोनों पता है तो लिखिए, नहीं तो ये बता दीजिए आपकी ये इमेज किस चीज़ का है. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश इज, डैश बोले तो फिल इन द ब्लैंक्स, डैश यूज टू रैप फूड आइटम. ओके, डैश यूज टू रैप फूड आइटम. ऑप्शन नंबर 1 इज एल्युमिनियम. Okay, now B1 is zinc. Now C1 is iron, and last one is none of this. Okay, none of this. आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, मिलेगा. ठीक है, 2-4 दिन वेट करो. इवैल्यूएशन के लिए हम क्लासेस बनाएंगे. सारे क्लासेस की इवैल्यूएशन आपको दिए जाएंगे जो अब तक क्लास टेस्ट हुआ है. पहले के बहुत सारे मैंने दिए भी हैं और रिसेंट में जो 3-4 दिन में हुए हैं उसको आपको नहीं मिला होगा, बट मिलेगा. वेट एंड वॉच. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश इज यूज टू रैप फूड आइटम्स. ऑप्शन नंबर 1 इज एल्युमिनियम, बी इज जिंक, सी इज आयरन, नन ऑफ दिस. कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है. रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ये क्वेश्चन है. ओके, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको बताया था. नाउ वी रिवाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. मेटल रिएक्ट विथ वाटर. मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट. नाउ सेकंड वन इज हाइड्रोजन गैस. ओके, सी इज बोथ ए एंड बी. बोले तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस दोनों फॉर्म होगा. एंड डी इज ओनली नाइट्रोजन गैस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. इसमें से कौन सा ऐसा है ABCD में जिसको हम लोग सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज जिंक, बी इज कार्बन, सी इज मरकरी एंड डी इज ब्रोमीन. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6 विच आर बेस्ड ऑन फिगर, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश यूज टू रैप फूड आइटम्स. आपने बहुत बार देखा होगा पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है. किसका यूज़ किया जाता है वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसलिए आपको अभी नहीं बताएंगे, मैंने क्लासेस में बताया था. ओके, डैश यूज टू रैप फूड आइटम्स. ऑप्शन नंबर 1 इज एल्युमिनियम, बी इज जिंक, सी इज आयरन एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, अगर आपको इसमें से लगता है कोई भी ऑप्शन नहीं है, देन आप
नन ऑफ दिस पे जा सकते हैं. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 8. इमर्सन रॉड. ओके, इमर्सन रॉड आपने यूज़ भी किया होगा और ठंडी में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो इसमें ये बताना है कि वो किस चीज़ का बना रहता है. ठीक है, इसका डायग्राम भी आप ब्लैक बोर्ड में देख सकते हैं ताकि आपको याद आ जाए. ओके, दैट इज़ द इमेज ऑफ इमर्सन रॉड. नाउ इमर्सन रॉड्स आर मेड अप ऑफ विच आर यूज फॉर हीटिंग वाटर. ओके, आपको बताना है इमर्सन रॉड्स आर मेड अप ऑफ. ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज एल्युमिनियम, B is metal, C is both A and B, and C1 is plastic. Okay, very easy option दिया गया आपको. Now the question number 9 is lemon pickle. आपने देखा होगा कि घर में आपके अचार बनते हैं, नींबू के अचार बनते हैं, तो उसको किस में रखा जाता है? मोस्टली लोग ग्लास के यूज़ करते हैं ना, और प्लास्टिक का नॉर्मली यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग ग्लास वाले के. कांच के जो बने रहते हैं ना, वो शीशे वाले जो गमले होते हैं उसको. लेमन पिकल. ओके, लेमन पिकल cannot be stored in a aluminum utensil. Okay, option number 1 is it form poisonous substance. It form poisonous substance. Okay, now B option is it shows chemical reaction. It shows chemical reaction. Okay, now the third one is it is chemical change, or we can say that there is a formation of new product, or we can say that is chemical change. Okay, it is chemical change. Now D1 is all of these, that is question number 9. Now we move to question number 10. Question number 10 is metal can be drawn into the form of wires. Okay, that is called, option number 1 is ductility. Okay, that is TY. Okay, don't confuse. Now B1 is malleability. Option number C is both A and B, and last one is none of this. Okay, now we revise from question number 8. Immersion rod are made up of aluminum. B option is metals. C is both A and B, and D1 is plastic. Okay, now the question number 9 is, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 इज लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स. लेमन पिकल को क्यों नहीं एल्युमिनियम वाले बर्तन में रखते हैं नींबू के अचार को? ऑप्शन नंबर 1 इज इट फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस. वहाँ पे फॉर्मेशन होगा जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है. B1 इज इट शोज केमिकल. ठीक है, वहाँ पे केमिकल फॉर्मेशन होगा, केमिकल रिएक्शन. ओके, नाउ C1 इज इट इज केमिकल चेंज. क्या वो एक केमिकल चेंज है? एंड D इज ऑल ऑफ दिस. आपको पहचाना है कि इसमें से विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड विच वन इज रॉन्ग. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ वायर. ओके, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी. B1 is malleability, C is both A and B, and D is none of this. That is question number 10. Now we write question number 11. अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है देन आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए. जवाब नहीं मिलता है थोड़ा वेट करिए, नहीं मिलता है मैसेज करिए, नहीं मिलता है कॉल करिए. इतना से ज़्यादा आपको सुविधाएं नहीं दी जाएगी, लेकिन इतना सुविधाएं में आपका काम हो जाएगा. ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 11. वन इज which metal
रिएक्ट विथ एयर, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ फास्ट। बोले तो कौन सा इसमें से ऐसा मेटल है जो एयर के साथ बहुत ही वैगोरसली रिएक्ट करेगा, बहुत ही फास्ट रिएक्ट करेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इज सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na। बी लिखेंगे हम यहाँ पे कैल्शियम, जिसका सिंबल होता है पोटासियम। एंड डी नंबर पे हो जाएगा आपका बोथ A and B. Okay, now we move to question number 12. Question number 12 is which metal react with air? मतलब ये रिएक्ट तो करेगा एयर के साथ, लेकिन क्या हो जाएगा, वहाँ पे आग पकड़ लेगी, फायर हो जाएगा, फायर पकड़ लेगा। वही हमको मेटल को क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, दीज आर एक्सेप्शनल केसेस जो आपको मेटल नॉन मेटल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। विच मेटल रिएक्ट विथ एयर and catches fire? Now the next option is sodium, B is potassium, symbol K, C is sodium and potassium both, D1 is none of these. Okay, now we move to question number 13. Metal, which one is liquid non-metal? Okay, option number 1 is bromine, B1 is sodium, C option is fluorine, C option is mercury, and D option is both A and B. Both A and B. ये जो सारे क्वेश्चन जो मिल रहे हैं एक्सेप्शनल केसेस वाले, ठीक है, जो आपको याद रखना है। मैंने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर्स पढ़ाए थे उसके लास्ट में मैंने सारे बताए थे आपको। ठीक है, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज बेस्ड ऑन फिगर। आपके जो ग्रीन बोर्ड है सामने, इस पे आपको एक इमेज दिख रहा है, डेट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पे बेस्ड है और एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, जो आपके टॉपिक्स है मेटल एंड मेटल, उसी चैप्टर्स का ये फिगर है। अगर आपने इस चैप्टर्स को पढ़ा है देन आप इजीली बता सकते हैं कि एक फिगर किस चीज़ का है। डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 14. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 15. Before writing the question number 15, we revise from the question number 11 to 13. Question number 11 is which metal react with air? इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो एयर के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, वैसे तो एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कहना सही नहीं होगा, बट ऑप्शन नंबर 1 इज सोडियम, बी इज कैल्शियम, सी इज पोटासियम एंड बोथ ए एंड बी. विच वन इज राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज विच मेटल रिएक्ट विथ एयर एंड कैचेस फायर. थोड़ा चेंजेस हो गया यहाँ पे कि ये तो एयर के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन फायर भी पकड़ेगा. ऑप्शन नंबर 1 इज सोडियम, बी इज पोटासियम, सी इज सोडियम एंड पोटासियम बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट इज 13. विच वन इज लिक्विड नन मेटल्स. यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे क्या है, लिक्विड नन मेटल. ओके, दैट इज नन मेटल है तो आपको चुनना है वैसे एग्जाम्पल्स को जो लिक्विड भी है और नन मेटल भी है. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रोमीन, ओके, B is sodium, C is mercury and D is both A and B. Okay, which one is right? Now we move to question number 15. 15 is exothermic means exothermic means heat released. Option number 1 is heat released, B is heat evolved. Okay, now C is both A and B and D is evolution. Okay, now we write question number 16. Question number 16 is very interesting and very easy. That is tin used for coating food cane. Tin
tin used for coating food can, ओके इसके पीछे रीजन क्या है वो आपको बताना है. इट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज. ऑप्शन नंबर 1 इज जिंक इज मोर reactive than iron. Okay, now option number B is iron is, the symbol is Fe, so we used here symbol. Fe is more reactive than zinc. Okay, option number C is zinc and iron are same. Now D is none of these. That is question number 16. Now we move to question number 17. Question number 17 is sonorous means, बताना क्या होता है. ओके, रिलीज ringing sound. Okay, option number 1 is, now option number B is shining surface. Option number C is conductor, and option number D is insulator. Okay, that is question number 17. To 17, question number 15 is exothermic means. Option number 1 is heat released. Option number B is heat evolved, and that one, that is C, both A and B. Both A and B बोले तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है या गलत. Okay, now option number D is evolution. Now we move to question number 16. Question number 16 is that tin used for coating food can. टीन का इस्तेमाल फूड केन बोले तो जो कोटिंग होता है, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में जो पैकेजिंग मटेरियल्स मिलते हैं खाने के लिए, उस समय आपका ध्यान गया होगा शाइनिंग सरफेस, उसी का आपको आंसर बताना है. टीन यूज फॉर कोटिंग फूड केन. ऑप्शन नंबर 1 इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. ओके, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ बिकॉज टीन यूज फॉर फूड केन बिकॉज, ठीक है. अब आप इसके रीजन बताओ. ऑप्शन नंबर ए इज जिंक मोर रिएक्टिव देन आयरन, बी इज Fe इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, एंड थर्ड वन इज जिंक एंड आयरन इज सेम. नाउ डी इज नन ऑफ दिस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. सोनरस मीन्स, सोनरस वर्ड आपने यूज किया होगा मेटल्स के प्रॉपर्टीज लिखने में. मेटल्स के बारे में जब लिखते हैं तो सोनरस जरूर लिखते हैं, वो रटा रटाया होता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड सोनरस मीन्स. क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज रिलीज रिंगिंग साउंड. ओके, B is shining surface. Now the is insulator. Okay, you have to tick only in one options. आपको टिक तो नहीं करने का मौका मिला है, बट आप लिखिए. ठीक है, लिखिए तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, आपको याद हो जाएंगे. बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, लिख के क्या होता है, याद हो जाता है. ठीक है. Now we move to question number 18. Question number 18 is very easy. The meaning of luster. Meaning of luster is, option number A is shining surface, option number B is hard surface. Okay, option number C is plastic material, and option number D is soft metal. Okay, that is question number 18. Now we write question number 19. Question number 19 is of full form of PET. Okay, option number A is polyethylene terephthalate. Okay, that is option number A. Option B is polyester ethylene terephthalate.
ओके, नाम बड़े बड़े सुन के घबराना नहीं है ना, छोटी मोटी बातें आपको साइंस में मिलते रहेंगी, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज पॉलीथीन, इथाइलिन, टेरिपैथलेट। नाउ ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। ओके, आपको इसमें से क्या करना है, कोई एक ऑप्शन को क्या करना है, ध्यान से चुनना है। ओके, सिलेक्ट करना है और इसको क्या करना है, नेशनल लेवल पे भेज देना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ। ओके, पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज स्टेरिफिकेशन, now B is ester, C is wool and D is caprolactam. Okay, now we move to question number 21. Question number 21 is based on figure. आपके ग्रीन बोर्ड में आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर को देख के आपको बताना है कि फिगर किस चीज़ का है, ठीक है, और इसके पर्पस क्या है ये भी आप लिख सकते हैं, क्या यूजेज है वो भी आप लिख सकते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। नाउ वी रिवाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। मीनिंग ऑफ लस्टर, लस्टर का मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में आपने पढ़े होंगे, उसका मतलब आपको बताना है। फर्स्ट वन इज शाइनिंग सरफेस, बी इज हार्ड सरफेस, सी इज प्लास्टिक मटेरियल, डी इज सॉफ्ट मेटल। ओके, नाउ 19 इज फुल फॉर्म ऑफ पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, पॉलीइथिलीन टेरिपैथलेट। ओके, बी इज पॉलिस्टर इथिलीन टेरिपैथलेट, सी इज पॉलीथीन इथाइलिन, ओके, इथाइलिन टेरिपैथलेट, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। ओके, नाउ 20 इज पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ। पॉलिस्टर जो होता है, आपने देखे होंगे पॉलिस्टर के कपड़े आते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े आपने पहने भी होंगे, काफ़ी हल्का होता है, लाइट होता है और काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, आसानी से आप मोड़ सकते हो, है ना। पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 इज टेरिफिकेशन, बी इज स्टर, सी इज वूल एंड डी इज कैप्रोलैक्टम। ओके, 21 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके जो फिगर में था। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 22। वेरी गुड, वेरी गुड, कम ऑन। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 22 इज दैट, question number 22 is which metal kept in kerosene. Okay, option number 1 is very easy, sodium, symbol is Na, B is calcium, symbol is Ca, last one is, that is C, not last one, second last, that is potassium, symbol is K, and last one is none of these. Okay, now we write question number 23. Question number 23 is based on NCERT. जितने भी क्वेश्चन हैं सभी based on NCERT ही हैं, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं दी गई है। Now 23 is which one is liquid non metal. ओके, लिक्विड भी है और नन मेटल भी है। ओके, लिक्विड नन मेटल। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी इज मरकरी, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। Okay, now we move to question number 24. Question number 24 is which one is correct statement. आपको नायलॉन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ओके, नाउ which one is correct statement? Option number A is nylon is man-made fiber. Okay, option number B is first
synthetic fiber. Okay, option number C is virus, easy to wash. Okay, and last one is that is D option, all of these. Okay, आप हमेशा यही सोचते होंगे कि सर आप लास्ट में नन ऑफ दिस लिखते हैं, जो ज़्यादा होशियार बनते हैं उनके नन ऑफ दिस ही दिया जाता है, ठीक है, और ऑल ऑफ दिस दिया जाता है जिनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस तभी सोचिए जब आप ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 25. Question number 25 is that which one is synthetic fiber? गलत. Which one is not synthetic fiber? नॉट लगा दिया जाए तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर 1 इज पॉलिस्टर, B option is nylon, C is acrylic, and D is jute. Okay, which one is not? Now question number 26 is 26 है आपका yellow vein mosaic of windy caused by. Okay, option number A is bacteria, option number B is fungi, option number C is virus, and option number D none of this. Okay, वेरी गुड. कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेगा, कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेगा. वेरी गुड जमातिया, वेरी गुड पिंकी, वेरी गुड रिमी देवनाथ, वेरी गुड. देखिए जो भी है आपके, वेरी गुड दीपेश, वेरी गुड. नाउ जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो भी क्लासेस होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के सभी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन बोल सकते हैं एक तरह से कि उसमें से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ताकि आपके जो प्रैक्टिस हो सके, एग्जाम के अच्छे हो सके, आप स्कोर अच्छा कर सको और साथ ही साथ नॉलेज भी गेन कर सको. ठीक है, प्राइमरी का हमारा नॉलेज गेन करना, मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे. नाउ चलते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 आपका बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. दैट इज हेपाटाइटिस ए. ओके, हेपाटाइटिस ए कॉज्ड बाय. Okay, now very good. Option number A is bacteria. Okay, option number B is virus. Okay, option number C is fungi. Option number D is none of these. Okay, that is question number 27. Now we move to question number 28. Okay, question number 28 is based on figure. Okay, 28 आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में, डेट इज ग्रीन बोर्ड में आपको जो दिख रहा है, नॉट ब्लैक बोर्ड. जो भी फिगर आपको दिख रहा है इसको बताना है कि इसके यूजेस क्या है. ओके, सेकंड आपको बताना है कि फिगर किस चीज़ का है. ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पक्का पता होगा कि फिगर किस चीज़ का है. डेट इज क्वेश्चन नंबर 28. नाउ वी रिवाइज फ्रॉम 25. विच वन इज नॉट सिंथेटिक फाइबर. ये भूत यहाँ पे है, दैट भूत इज कॉल्ड नॉट. ये भूत जब आ जाता है तो बच्चे आंसर गलत कर देते हैं, तो इसको पहचानना है एग्जाम में. जब क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ोगे तो जहाँ नॉट मिल जाए ना तो थोड़ा आप कॉन्शियस हो जाना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए नॉट पे ध्यान देना है. ठीक है, विच वन इज नॉट सिंथेटिक फाइबर, आपको चुनना है नेगेटिव वन, ऑड वन. ओके, फर्स्ट वन इज पॉलिस्टर, B is nylon, C is acrylic, and D is jute. Okay, next 26. Yellow vein mosaic of windy caused by A is bacteria, B is fungi, C is virus, D is none of these. Okay, तो ये चारों क्या है आपके दुश्मन है. दोस्त किसको बनाना है, किसी एक ऑप्शन को आप दोस्त बनाएंगे. नाउ 27. हेपाटाइटिस A caused by A is bacteria, B is virus, C is fungi, and D is none of these. That is question number 27.
Now 28 already we discussed based on figure NCERT based diagram. Now we write question number 29. Very good, very good. No any doubts? Very good questions. Very nice. Come on, you can do it everything which you want. Now we write question number 29. Question number 29 is very interesting. That is jam. जैम तो सबका फेवरेट होगा, ब्रेड जैम आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इसको प्रिजर्व कैसे करते हैं? लॉन्ग टाइम तक आप मॉल पे जाते हो, दुकान पे जाते हो, आपको बॉटल्स में मिलते हैं, तो उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ प्रेजेंट रहता है कि वो अच्छे से बहुत दिन से पड़ा रहता है, ठीक है, ख़राब नहीं होता है, वो आपको बताना है। जैम्स, जेलीज भी आपने बहुत खाए होंगे, ठीक है। जैम जेलीज आर preserved by option number 1 is that is salt, okay. Option number B is oil, okay. Option number C is sugar and option number D is vinegar, okay. Easy है लेकिन खतरनाक है ना, very basic question. Now question number 30. Question number 30 is also very good questions. Now pickles prevent by option number A is oil, okay, and salt. Option number B is vinegar. Now C1 is both A and B, and last one is none of this, okay. That's the last question of these classes, okay. Now जो भी क्वेश्चंस आपके दिए गए पहले भी जो टेस्ट हुए, जो भी बच्चे पर्सनली सेंड किया उनको मैंने चेक करके बता दिया था, बट फिर भी आपने नहीं चेक किया तो आपकी इवैल्यूएशन क्लासेस जो बनेंगे आपको बता दिया जाएगा, उसमें से आप सेल्फ चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थी प्राइमरी बातें। सेकेंडरी बात ये है कि जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी पढ़ेंगे। होता है मैन वॉक्स अंडर प्रेशर, जब प्रेशर आता है तो इंसान दौड़ता है ना। जब ट्रेन छूटने वाली रहती है तो सब दौड़ते हैं, चाहे वो इंसान कितना भी हेल्थ से ख़राब हो, चाहे वो बुखार से पीड़ित हो, उसको बस बता दो ट्रेन छूटने वाली है, 2 मिनट में सारे दिमाग ठंडे हो जाते हैं और दौड़ने लगता है, ठीक है। तो बोला जाता है मैन वॉक्स अंडर प्रेशर। एग्ज़ाम सामने आएंगे दौड़ेंगे, होता है कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बींग्स का, वो दौड़ेगा, ठीक है ना। जो भी डाउट्स हैं आपके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैसेज लिखिए, जो भी करना है आपको जो पता है उसके हिसाब से आप करो, आपको आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चंस को बनाइए। अगर आप नहीं बना पाते हो, आप तो घर पे हो, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं आंसर आता आप बुक्स देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बुक्स को देखो, आप देखो कि कहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, उसको आप रीड आउट करो, ताकि मार्क्स तो सेकेंडरी चीज़ है, मैंने बार बार बताया, नॉलेज गेन करना आपको पहले है। जब आपके पास नॉलेज आएंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बुक्स को देखो, अगर आप पहले आप टेस्ट को अटैम्प्ट करो, सेंड करो, देन आप बुक को देखो। फर्स्ट आप बुक को मत देखिए, नहीं तो आपके क्या होंगे कि जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ हो जाएगा। 30 में अगर आपको 20 क्वेश्चन भी आप जवाब दे पा रहे हो तो वो भी आप क्या करोगे, फिर चीट करने लगोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेल्फ से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम ओवर होने के बाद जब आप मेरे पास सेंड कर दे तो देन आप बुक्स खोलिए, पढ़िए कहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ था, तब आपके दिमाग में वो परमानेंट याद हो जाएगा, ठीक है। होता है क्या कि ऑडियो विजुअल एड्स इज़ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। जब इंसान देखता है और सुनता है तो ज़्यादा सीखता है, ठीक है। भले ही आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातें हमारे तक जो आप बोलते हो ओरल मुँह पे नहीं पहुंच पाता है, फिर भी मैं गूगल मीट पर दी है, ठीक है, उसमें आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे बच्चे तो फ़ोन करके ही पूछ लेते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो 15 मिनट तक गुड मॉर्निंग ही बोलते रहते हैं, तो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ तो वो क्या ब्रेक हो जाता है, कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, जो बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है। आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके बहुत सारे मैंने मेथड बता दिए, मैसेज है, कॉल है, आपके फ़ायदे होने चाहिए, चाहे वो मेथड कोई भी हो, आपके फेवर में होना चाहिए, दैट्स इंड, ओके। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर।